Hello guys, welcome back to my channel. I'm Vishali. If this is your first time seeing my face, then hey, welcome to my channel. And if you have been before, it's an honor and pleasure to have you here with me. You girls are just so excited for today's video because I'm in such a good mood. I hope you can feel my energy and can sense the feel good vibes, okay? So I found out that 80% of people's New Year resolutions just go into the dumpster mid-Feb. And baby, I'm here to remind you that you still have time. You know, I was always one of those girls जिसके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस 15th जनवरी तक एंड हो जाते थे और मैं फिर बेसिक हैबिट्स पर आ जाती थी. बट दिस ईयर आई हैव डिफरेंट एनर्जी. मुझे अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हर दिन याद आते हैं और पता है, जब मैं जर्नल करती हूँ तो हर दिन एक्रोनिम्स बना के ऊपर लिखती हूँ. एंड आई एम फोकस्ड टुवर्ड्स माय गोल बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टे अनप्रोडक्टिव, मेस्ड अप, डीमोटिवेटेड, अनडिसिप्लिन. हो गया यार और चली गई मेरी मेस्ड अप एरा. एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट हेल्प मी आउट is these micro habits that I'm going to tell you in this video. Trust me baby, these micro habits completely transformed my life, and these habits will completely transform your lives too. Allow you to level up and even help you to do the things that you don't want to do. And these are tiny teeny baby things that you can do every day that will not even take a lot of your time. So let's just jump into the video. This first habit I'm going to share with you guys is asking yourself every single morning, looking at yourself in the mirror and asking yourself, what do you need from me today? And you know, there was this time मैंने खुद को मिरर में देखा and I literally start crying. I was so broken, I was so demotivated, so hopeless. मैं उस मोमेंट को अभी भी याद करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या था, मैं क्यों रोने लगी थी. बट I don't know what was that. I know it's so silly, it's so small, but जब आप ये ट्राई करोगे आप खुद आंसर करोगे खुद को देखकर. आस्क योरसेल्फ कि कितना डिफरेंस है उस लाइफ में जो आपको चाहिए और जो लाइफ आप जी रहे हो. तो आपको खुद एक मोटिवेशन मिलेगी एंड इट हेल्प्स यू टू बिल्ड दैट कनेक्शन विद योरसेल्फ, दैट सेल्फ लव. It actually helps you to get an understanding of what you need from yourself, what direction you would like to go. And when you do this daily, you can truly show up for yourself the way that you need to. The next habit that I like to share with you guys is plan out your day the night before. See, I live alone. I can do whatever I want at any time of the day, but that literally sucks. You know, that unplanned things makes me feel so demotivated कि कोई time ही नहीं है, ना lunch time fix है, ना dinner time fix है, ना कोई study goals है कि कितने time पढ़ना है. Let me tell you one thing. See, जब आप प्लान रखोगे ना सब कि आपको क्या करना है, कितने टाइम में करना है, तो आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी. लाइक जब मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी, मैं रात में लिख कर नहीं सोती थी, तो मैं इतनी मेस्ड अप रहती थी, मैं पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती थी. एंड प्लानिंग द डे बिफोर हेल्प्स मी टू गेट दैट डिस्ट्रैक्शन अवे फ्रॉम मी. एंड या ट्राई करना, दिस विल गोना हेल्प यू ऑल्सो. Next thing is surround yourself with positivity by supportive relationships, supportive friendship and environment that uplifts you and inspire you. Spend time with yourself. ठीक है, spend time with people who encourage you to be your best self and engage in activities that brings you joy. Supportive friends, supportive partner, supportive लोगों का होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. And yeah, सिर्फ लोगों से ही सपोर्ट एक्सपेक्ट मत करो, खुद भी सपोर्टिव बनो. लाइक अगर मेरे किसी फ्रेंड को या किसी को भी मेरी ज़रूरत है तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं उनके लिए अवेलेबल रहूँ. ठीक है, और बट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट. एंड या जरूरी नहीं होता फीमेल फ्रेंडशिप है तो जेलस होगी. नो, ट्रू फीमेल फ्रेंडशिप्स जो होंगी ना उसमें जेलसी की जगह ही नहीं होती. ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होती है. और अगर कोई दोस्त नहीं भी है ना तो ट्रस्ट ऑन गॉड, दे गोना हेल्प यू. और हाँ, वो तो डिच भी नहीं करेंगे. एंड अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आपकी फ्रेंडशिप टॉक्सिक है, तो फील करना आपकी ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि आप फोकस्ड ही नहीं रह पाओगे अपने काम पर. ट्रस्ट मी, अगर कुछ भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक है ना, आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हो, आपकी फैमिली में थोड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या फिर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, फील करके देखना. अगर ऐसा कुछ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. बट मैंने ये फील किया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है. ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है आपकी ग्रोथ पे इन सब चीज़ों का. सो ट्राई करें. अगर आपकी सराउंडिंग में कुछ भी आपको टॉक्सिक लगता है ना, अगर दो लोग चुगलियाँ भी कर रहे हैं ना तो भी उनकी चुगली का पार्ट मत बनो यार. अब मेरे को पता है लड़कियाँ चुगली करती है ऐसे ऐसे, बट यार क्यों, मतलब नहीं भाई. आपको पता है किसी के बारे में नेगेटिव बोलने से ये बहुत एनर्जी वेस्ट होती है. मेरे को ये समझ नहीं आता कि लोग अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कैसे कर लेते हैं. मतलब किसी दूसरे के बारे में बात करके आप अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो. नो यार, ठीक है, ये लड़की नहीं बनना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है. किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है. ठीक है, वो इंसान जैसा है उसको वैसे रहने दो. आप क्यों उसके बारे में बोल रहे हो भाई, मत बोलो. ठीक है, मुझे ट्रस्ट मी, अगर आप लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करके देखना, अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलोगे ना तो आपके साथ खुद इतना ज़्यादा बुरा होने लगेगा ना, बहुत ज़्यादा. तो
ट्राई करना किसी के बारे में भी नेगेटिव मत बोलो, ठीक है? अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो नेगेटिव तो मत ही बोलो, ओके? Next habit is nourish your skin. Start your self-care journey by nourishing your skin with a simple skincare routine. एक gentle क्लेंजर यूज करो, एक हाइड्रेटिंग सीरम यूज करो, फेस मास्क यूज करो वीक में एक बार अपने टेक्सचर के अकॉर्डिंग. डोंट फॉरगेट टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज एंड या स्टे हाइड्रेटेड. सेट योर वाटर रिमाइंडर एंड ड्रिंक plenty of water throughout the day because it really helps you to get rid of toxins in your body. See, एक वीक का चैलेंज करो कि आपको 11 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना है हर दिन और आपको डिफरेंस दिखेगा खुद ही. ट्राई करके देख लेना, डिफरेंस नहीं मिला तो आके कमेंट करना. And the next micro habit is 10-minute cleanup every single evening, no matter how tired you are. This is where you can use 5 4 3 2 1. What is 5 4 3 2 1? I'm going to tell you this in next point. And just go ahead and do it clean. Clean up your space because tomorrow me is going to wake up in clean house and she's going to feel productive. She's going to feel motivated. She's going to feel like that girl. And that's how I want to feel. And even though I'm exhausted right now, but I'm going to take the time in my night to make tomorrow me feel just a little bit better, a little bit more productive. Okay? आप भी जरूर करना. The next habit I have for you guys is one that completely transform and change your life. It has changed and transformed so many people's life, including mine. And that is the 5-second rule. Okay? You don't want to go to the gym? Okay. You don't want to get up? It's simply 5 4 3 2 1. Like you know exactly what you need to do to make the changes in your life. You know exactly what you should do to get to where you want to be. You know exactly what you need to do to level up, to glow up, everything, but you don't do it, and that's why people gave up on their new year resolutions in fab. It's because you can't get yourself to do it. You are so used to it, you were so wired to doing the same habits, to clicking snooze button, because our brain are literally resistant to change. Like आप खुद देखो, एक एग्जांपल देती हूँ. आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना है, या एक ऑप्शन है कि आपको लिफ्ट से जाना है. आप ऑफ कोर्स लिफ्ट से जाओगे बिकॉज हमारा माइंड जो होता है ना, वो हमेशा कंफर्ट जोन को चूज करता है. वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहने के लिए बोलता है. अब मैं आपको एक बहुत मस्त एग्जांपल देती हूँ. लाइक जैसे सुबह मेरा अलार्म बज रहा है, मेरे पास 2 ऑप्शंस है. या तो मैं उठकर अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाऊं, या फिर मैं थोड़ी देर और सोकर रिग्रेट करूं. तो what I do is this 5 4 3 2 1 method, और 1 सेकंड में उठती हूँ. 5 4 3 2 1 मेथड इज बेसिकली कि एक बार हिम्मत करनी है. एंड हियर you are sitting on your study table, going to the gym. जैसे I live alone, तो मेरी खाना बनाने में बहुत जान निकलती है. So I use this 5 4 3 2 1, और मैं किचन में जाती हूँ, फटाफट खाना बनाती हूँ, और फिर जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है. लाइक इट्स जस्ट दैट हिम्मत की बस तुम एक बार खुद को बोलो 5 4 3 2 1 एंड तुम उठ जाओ उस काम को करने के लिए. कुछ मत सोचो, कुछ मत दिमाग में लाओ भाई, बस एक बार उठ जाओ और काम कर लो, ठीक है? और फिर जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, लाइक वो ऐसा होगा कि आपके मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 आ गए, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा. Next habit I have for you guys is to leave your phone behind as often as you can. Like I do it intentionally. जैसे अगर मैं टेरेस पर जा रही हूँ वॉक करने, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो आई ट्राइड कि मैं अपना फोन घर पे ही छोड़ के जाऊँ, so that I can feel more present. Being on my phone all the time depressed me because, as I told you earlier, we spend so much time mindlessly scrolling, and it's the worst habit. You know, social media and your phone snatches away your attention, और आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हो. तो ट्राई टू टेक अ गैप फ्रॉम योर फोन. लाइक मुझे अगर मैं 1-2 घंटे मैं इंस्टाग्राम यूज कर लेती हूँ, इट लिटरली ड्रेन्स माई एनर्जी. मुझ में इतनी एनर्जी ही नहीं बचती है कि मैं आगे कुछ काम कर पाऊँ. तो मैं तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ. कभी भी सुबह उठकर अपना फोन यूज मत करो. मतलब ये तो आपकी ना वर्स्ट हैबिट में से एक है. लाइक मुझे आदत थी कि मैं सुबह उठते ही इंस्टाग्राम चेक करती थी, बट ट्रस्ट मी, मैंने इस इंस्टाग्राम चेक करने वाली हैबिट को पिंटरेस्ट चेक करने वाली हैबिट में चेंज किया, और मुझे इसके इतने बेनिफिट्स मिले हैं ना, बहुत ही ज़्यादा. मीन्स अब मेरे पिंटरेस्ट फीड पे जो चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है, लाइक जो मेरे गोल्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें दिखती है. एंड इंस्टाग्राम लिटरली ड्रेन्स माई एनर्जी, सो आई तो लिटरली अवॉइड यूजिंग इंस्टाग्राम. The next habit is prioritize sleep and rest. Ensure you are getting enough quality sleep each night to allow your body to recharge.
Create a restful sleep environment by dimming the light, limiting screen time before bed, and establishing a relaxing bedtime routine. Listen to your body signal and prioritize rest when needed. Whether it's taking a short nap, means यार अगर आपको दिन में टाइम मिलता है ना और आप सुबह जल्दी उठे हो तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के एक नैप ले लो. अगर आपको बहुत ऐसे डेजी फील हो रहा है, जैसे पढ़ते हुए, अगर सपोज करो आप सुबह पढ़ने के लिए उठे हो, आप सुबह जल्दी उठे हो, आप 4 बजे उठे हो, आप 3 बजे उठे हो और आप दिन के 2 बजे तक आप थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो, तो भाई एक छोटा सा नैप ले लो. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 4-5 घंटे सो जाओ, 15 मिनट सो जाओ तो आपके दिमाग को भी थोड़ी शांति मिलेगी, जैसे मैं तो कर लेती हूँ. और अगर आप घर रहते हो तो ही आप ये कर सकते हो, अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप ये भी नहीं कर सकते. तो फिर आपके लिए सिर्फ रात ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सो सकते हो अच्छे से. और फिर इतने थक के जब आप घर आते हो तो एक अच्छा सा एनवायरनमेंट अपने पास क्रिएट करो, थोड़ी सेंटेड कैंडल्स वगैरह जला लो, ठीक है. और फिर आप एक मस्त हॉट शावर ले सकते हो. और एक और बात है कि अगर आप रात में हॉट शावर लेकर सोते हो ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आती है. ट्रस्ट मी, करके देख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिटेड यू इन एनी वे. लव यू so much and I hope to see you next time.